your hand. Fantastic. So my first, on behalf of IDS growth that we are going to be projecting in the second session and everything, it all happens because of you. So we are sitting here today to talk about direct selling in a social networking area, the social media area. And I'm sure all of you as a leader would be like to know what does that mean and how it is going to change your way of working over a period, if not change already. But to start that particular part, let me just go back to when direct selling as a concept started. It started in 1970s, right? Maybe little before that. And the idea was to sell the product in a place which is not shop, away from the shop, by demonstration or testimonials of that particular product. A product used to be the one which required some explanation so that you tell somebody, because there is no perceived need of that product at that particular point of time. So you are actually showing them that this product is required. The vacuum cleaner, if you remember, in India. And that was that particular era. And why it started? When there were shops, but it started because reaching people with new ideas was very difficult. There were no ways of reaching people. Advertisements were very costly, and making that whole network to reach through the last mile was very difficult, time consuming, etc. So somebody thought this great idea that why not use the advantage of individual and their network. And that's how the direct selling started, the networking started long back. Same time, you will be very, I don't know how many will you know about it, but internet started about the same time. It is a 50th year of internet today, or in this particular period. But over the time, the internet has grown to encompass all our lives and every part of whatever that we do. So today, all communications, information, everything comes out of internet, right? So as the direct selling has grown, the internet has grown on the other side, and we have reached to a point where we are now dependent on internet and social media to do a lot of things. And our idea is to now see how that particular concept 60, 70 years back is holding good in the current scenario. And I have a great panel here. I have done moderations for many other talks for IDSA and other companies, and it's always the corporate head sitting here or the government agencies sitting here and talking, asking them questions. This is the first time I have some motivational leaders, young guys who has written books, who has done a lot of programs, sitting in front of me. I don't know how many would you know, but to get all these four people from your perspective on one stage is a huge thing. I mean, I would like you to take their signatures and photographs as you go back. That's part of the direct selling, right? But that's a great honor to me to talk to these guys, and very frankly, more than you, I am interested in what they are going to talk and tell us about various things that I would like to ask them. So I will be asking questions, and possibly we can take it one by one as you go along. The new scenario of having the internet and social media, how that has changed the direct selling ways of doing working. You have the mic here. Okay. Hi. Hello everyone. Actually sir, मेरे अकॉर्डिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने ना डायरेक्ट सेलिंग को एक नई दिशा दी है. वो इसीलिए क्योंकि इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव्स के पास जाकर अपना बिजनेस प्लान शो करना समहाउ थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता था. हम एक स्टेट में बंद के रह सकते थे. लेकिन जब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आए हैं और इतने सारे हमें ऑप्शंस मिले हैं कि हम कहीं भी अपना बिजनेस प्लान शो कर सकते हैं, किसी को भी भेज सकते हैं, तो ऑब्वियसली हमारी टीम को तो ग्रो होना ही है. नॉट ओनली इन इंडिया, हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज करके पूरे वर्ल्ड में अपने बिजनेस को दौड़ा सकते हैं. राइट?
सो यहाँ पे कितने लोग अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं? से आए, थोड़ा सा तेज बोलेंगे, से आए। ऑलराइट, बिकॉज या फॉर श्योर, सी बिकॉज मेरा थोड़ा सा बोलने का तरीका अलग रहता है, आई डो नॉट नो, बट द मेन मोटिव वाई यू आर हेयर बिकॉज यू वांट टू टेक समथिंग जिससे आपका बिजनेस बढ़े। एम आई करेक्ट? एब्सोल्युटली, आई नो दिस। नाउ द थिंग इज, व्हेन आई टॉक अबाउट इंटरनेट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब हमें जानते हो, इट्स बिकॉज ऑफ इंटरनेट, है ना? इट्स बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, अदरवाइज आप हमें जानते नहीं होते। एंड इट इज द सेम द केस विद यू। सी आई से दिस, अगर कोई तुम्हें जानेगा नहीं तो कोई तुमसे खरीदेगा नहीं। आपने कभी सुना भी होगा ऐसा, मैं भी ऐसा बोलता हूँ, अगर कोई तुम्हें जानेगा नहीं तो कोई तुमसे जुड़ेगा भी नहीं। कोई तुम्हें जानेगा नहीं तो आगे कोई बिजनेस नहीं होने वाला, कोई ट्रांजैक्शन नहीं होने वाली। अब जानने के कई तरीके हैं। आप जाके एक इंसान को अप्रोच करते हैं, उसे बताते हैं अपने बारे में, वो ऐसे जान जाता है, जो ट्रेडिशनल वे है। नाउ रीचिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल हैज बिकम सो सिंपल विद सोशल मीडिया। देयर इज अ न्यू टर्म कॉल्ड अट्रैक्शन मार्केटिंग। किसी ने सुना इसके बारे में पहले? नहीं सुना तो आज मैं बताता हूँ। अट्रैक्शन मार्केटिंग इज समथिंग कि आई डोंट गो टू द पीपल, पीपल कम टू मी। मैं लोगों तक नहीं जाता, लोग मुझ तक आते हैं। अब ये करना आसान कैसे हो सकता है? बिकॉज हमारे पास फ्री टूल्स हैं, जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, ये फ्री टूल्स हैं। अगर आज हम इसे यूज नहीं कर रहे तो हम अपना एक तो वक्त जाया कर रहे हैं और बेवकूफी भी कर रहे हैं, क्योंकि टाइम हम सबके पास लिमिटेड है। आपको करोड़ों कमाने हैं, मुझे भी करोड़ों कमाने हैं, बट कितने टाइम में कमाने ये मैटर करता है। पूरी जिंदगी कमाने हैं तो जैसे कर रहे हैं वैसा कर सकते हैं, बट अगर जल्दी कमाने हैं तो जल्दी करने के लिए एक तरीका आया, सोशल मीडिया। सी आई ट्रेन पीपल हाउ टू रिक्रूट पीपल थ्रू फेसबुक, नाउ हाउ यू कैन बिल्ड अ ब्रांड थ्रू यूट्यूब, व्हाई टू बी continuously active with Instagram and WhatsApp, because we want to hit the mind of people कि वो हमारा नाम ना भूलें। Once we approach people, हमारा follow up आसान हो जाता है because of the internet. But if you guys are not using internet, secondly, if you are using it wrongly, 99% of the networkers use Facebook and YouTube in correct way. The reason being, we put out our products, show भाई ये प्रोडक्ट अच्छा है, हम ये बेचते हैं, like this, no? So there is a lot to learn about social media marketing if you want to grow your business, and that is what we will discuss today. But if you want to grow your business, as you told, yes, I want to grow my business, this session is for you. Thank you. I'll give some facts and figures to this. मेरी book लिखते time I did some research, and as per Forbes magazine, 90% content in the world has been created in last 2 years. दुनिया का 90% कंटेंट पिछले 2 साल में क्रिएट किया गया है, और ये जो कंटेंट क्रिएट किया गया है इसका शायद 90% सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट किया गया है, राइट? सो सोशल मीडिया यूज करना या नहीं करना इज नॉट द क्वेश्चन नाउ. द क्वेश्चन इज नॉट वेदर आई विल यूज सोशल मीडिया और नो. क्वेश्चन इज हाउ वेल यू सोशल मीडिया. तो हम उस एक लेवल से ऊपर आ गए. अब आपके पास ये चॉइस हमने नहीं दी, सोचिए, आप डिसाइड करिए सोशल मीडिया में. तो अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपके लिए जैकपॉट है. सोशल मीडिया आपकी अच्छाई को बढ़ा सकता है. और अगर आपने कुछ खराब किया तो पहले सिर्फ आपको मालूम था और दूसरे उसको मालूम था कि आपने गड़बड़ की है, लेकिन अगर अब गड़बड़ हो गई तो सारे देश को 24 घंटे में मालूम चलेगा. दैट इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया. सो इफ एनीबडी हियर सिटिंग हियर और एनीबडी इन द वर्ल्ड, इफ यू बिलीव यू आर डूइंग ए गुड वर्क, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छाई को फैलाने का, मल्टीप्लाई करने का, मैग्नीफाई करने का और थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा के भी बता देने का, सोशल मीडिया इज अ पावरफुल प्लेटफॉर्म. सो रेस्ट ऑफ द डिस्कशन वट एवर टाइम विल हैव. सो आप में से कोई आदमी इस बात पे लड़ना नहीं चाहिए. एनी मैन और वुमन सिटिंग हियर, ओके, एनी लेडी और जेंटलमैन सिटिंग हियर, डोंट वरी अबाउट सोशल मीडिया होगा नहीं होगा और क्या मैं इसके बिना भी सर्वाइव कर सकती हूं. फाइंड आउट हाउ यू कैन यूज इट in a smart way in next 30-40 minutes, whatever we have with you guys. Right? थैंक यू पुष्कर सर, दिव्या जी, दीपक सर, मनोज सर. मैं आज 40 साल का हूं. जब मैं 20 साल का था तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया, और जब मैं पहली बार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया तो मुझे बताया गया कि IDSA इज ए मक्का मदीना ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री. मैं 20 साल से इंतजार कर रहा था कब मैं जाके वहां बात करूंगा, और आज ऐसा मौका मिला.
तो आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। स्वागत भी करता हूं। थोड़ा उसी अंदाज में बताऊंगा जिस अंदाज में मैंने सीखा है। जब चीजें अपने आप को विकसित करती है, जब चीजें अपने आप को ग्रो करती है, तो उसके पीछे जरूर किसी न किसी चीज का सपोर्ट होता है। जैसे एक आदमी 2000 किलो वजन नहीं उठा सकता, लेकिन किसी आदमी ने चेन पुली ब्लॉक का इजाद कर दिया, तो एक आदमी ने उस सिस्टम से 2000 किलो वजन उठा दिया। कोई तो चीजें थी जो किसी न किसी आदमी के माइंड में क्लिक हुई, जिससे चीजें आसान हुई, जीवन आसान हुआ। पहले हम बैलगाड़ी से जाते थे, फिर हम फिएट से जाने लगे, फिर हम मर्सिडीज से जाने लगे, अब हम हवाई जहाज से जाने लगे। 30,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाले फाइटर प्लेन भी अमेरिका ने ला दिए। इसका मतलब एक विकास का सिद्धांत है जो कहीं ना कहीं वर्क कर रहा है। लेकिन आप और हम जिस इंडस्ट्री में हैं, इस इंडस्ट्री में वो कौन सी चीज है जो हमें फायर दे सकती है? वो कौन सी चीज है? आपने कितने लोगों ने अभी मंगलयान वाली मूवी देखी थी, जिसमें उसने वो जो पुड़ियां थी उससे एक आइडिया आया कि इसको उस टाइम पे बंद कर दिया जाए तो भी ये काम करता है, तो एक राउंड लगाया और अगली जंप मारी। सोशल मीडिया ने 4G, 5G, 6G इस जनरेशन का काम डायरेक्ट सेलिंग के लिए किया है। और जो पहले की थीम थी भेरू जी, भौमा जी, तेजा जी, उसको 4G, 5G, 6G पे शिफ्ट किया है। ये H2SO4 का काम कर रहा है, ये उत्प्रेरक का काम कर रहा है। अब उससे हाथ जला भी सकते हैं और उसी उत्प्रेरक से हम अपने आप को कई गुना जंप भी मार सकते हैं। आज इस प्लेटफॉर्म की वजह से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से हम सब लोग एक जगह बैठ पाए। मैं पुष्कर जी को जान पाया, दिव्या जी से पहली बार मिल रहा हूं, सर हम लोग साथ हैं। ये बहुत बड़ा संदेश दे रहा है कि जो जड़ें हमारी सींच रही है ना, उस तक हर व्यक्ति नहीं पहुंच पा रहा है, उस तक हर अपलाइन नहीं पहुंच पा रहा है। ये वैसा ही था जैसे पहले के जमाने में हाईवे बनाने के लिए पहले वर्क करना पड़ता था और फिर मैक्सिमम 2 लेन बनती थी। आज 6 लेन है, आज फास्ट टैग है। मैं मेरी डिजायर को लेके जाता हूं कार को, तो मुझे 5 से 10 मिनट लाइन में लगनी पड़ती है, और मर्सिडीज बेंच को लेके जाना पड़ता है तो उस लाइन में जाता हूं जिसमें मेरा समय खरीद लेता है वो, क्योंकि उसमें फास्ट टैग है। जानबूझ के नहीं लगवा रहा मैं डिजायर में भी, कि मुझे ये एहसास होना चाहिए इन दोनों जिंदगियों में कितना फर्क है। ये सोशल मीडिया आप और हम लोगों के लिए उत्प्रेरक का काम करेगा। अगर इसका सही यूज किया तो ये आपको और हमें एक ऐसी ऊंचाइयों पे पहुंचाएगा। हजारों लाखों लोग हैं जिन तक मैं पहुंचना चाहता था, लेकिन मैं पहुंच नहीं सकता था। आपने देखा होगा 2014 के जो चुनाव थे लोकसभा के, उसमें एक चीज ऐसी हुई थी जिसने पहले के 50 सालों में बदलाव कर दिया। वो क्या था? एक ही स्पीकर एक साथ देश के 200 जगहों पे अपनी बात पहुंचा रहा था। ये कैसे हुआ? ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हुआ। लेकिन यूज करने का तरीका जिसे आया, चाकू को सब्जी के लिए भी यूज कर सकते हैं और मर्डर के लिए भी यूज कर सकते हैं। तरीका आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक व्यक्ति इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस इंडस्ट्री को चरमोत्कर्ष पे पहुंचा सकता है, अपनी अल्टीमेट परिणति तक पहुंचा सकता है, अगर इस पे सही ताकत लगाई जाए तो। ये मैं क्यों कह पा रहा हूं? मैं अपना 20 साल आज याद कर पा रहा हूं कि किस जमाने से हम उठ के आए, कैसे हम जाते थे, फिर उसको एक बुक दिखाते थे, देख ये हैं, इनसे मिलेगा तेरी जिंदगी बदल जाएगी। फिर उनसे मिलने में वर्षों लगते थे, उससे पहले उसकी जिंदगी सिमट जाती थी। अब तो हाथ में लेके जाते हैं, अब तो नाम ही डालना पड़ता है। भैया देखिए, ये हैं पुष्कर राज जी, ये हैं दीपक बजाज जी, ये हैं दिव्या जी, ये हैं वो लोग जिन्होंने अपना जीवन बदला है। ये जो समय को काबू में कर लिया ना, ये अपने आप में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं, ये रिद्धि है। जैसे आंखें रिद्धि है, देख सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं, रिद्धि है। ऐसे 6 सेंस के बाद 7 सेंस अगर मनुष्य के लिए कोई आने वाले युग में है, उसका नाम है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। कई चीजें अच्छी हो रही है। पत्नी को पता है पति किधर है, पति को पता है पत्नी किधर है, बच्चों को पता है क्या करने जा रहे हैं। मेरी बेटी और मेरे बेटे ने वीडियो शूट कर ली, क्योंकि वो 4G 5G है, मैं पहले वाला हूं, सॉफ्टवेयर प्रोसेसर पुराना हूं, लेकिन वो अब कि पापा जो काम आप 40 साल में नहीं कर पाए, वो हम 6 साल की उम्र में शुरू कर चुके।
मतलब मेरे बच्चों के 40 साल इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने 40 साल आगे लेके गया उनको, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। तो दिल रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बात बताते टाइम, क्योंकि ये डिस्कशन का भी मुद्दा होगा ये मुझे नहीं पता था। लेकिन आज चर्चा का सब्जेक्ट है तो बहुत खुशी हो रही है कि हम इस प्लेटफॉर्म से, और एक चीज और, दुनिया की हर इंडस्ट्री एक है, यूनाइटेड है। एक अपनी इंडस्ट्री है जहां पे सबको अपनी दुकानें से लगती है हम बापू हैं, और इसी ने मरवाया, इसी ने तकलीफ दी, और इसी ने हैदराबाद बुलवाया, इसी ने आंध्रा बुलवाया। अरे रे, टैक्स यूनियन एक है, वकीलों की यूनियन एक है, डॉक्टर्स की एक है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में एक बैलगाड़ी के चारों तरफ बैल जब जोत दिए जाते हैं तो उस बैलगाड़ी का क्या हाल होता है वो हम 2012 में देख चुके हैं। अगर आपको इससे और कम करना चाहिए तो अपनी एनर्जी को इकट्ठा करके सही वे में इस प्लेटफॉर्म को यूज करके, क्योंकि आज कुछ कंपनी जैसी हैं जिनको मैं उपलब्ध नहीं हूं लेकिन सोशल मीडिया पे मैं मिल पा रहा हूं। मुझे पुष्कर सर उपलब्ध नहीं थे लेकिन आज मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से उपलब्ध हैं। ये घटनाएं छोटी नहीं है, ये बहुत भारी है कि आज हर व्यक्ति मेरी डाउनलाइन के 1000 गहराई में वो व्यक्ति सफल लोगों को सुन पा रहा है, उनकी जिंदगियों में झांक पा रहा है, वो खुश हो पा रहा है, उनके आंसू आ पा रहे हैं, वो देख पा रहा है। अरे रे, बहुत बड़ा माध्यम है। तो इस माध्यम को हमें अपनी उन्नति के लिए और अपनी तरक्की के लिए यूज करना चाहिए। इतना तो करना ही चाहिए जितना पिछले 10 सालों में चुनावों ने किया है। जब वो कर सकते हैं इस मीडिया को यूज करके, तो हम भी बापू बन सकते हैं अपनी इंडस्ट्री में, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू। Fantastic.